Namaskar and warm greetings from Mizoram. I thank NDTV and the Banega Swasth India campaign for this opportunity. Though unable to join in person, I am honored to share a few thoughts. In Mizoram, we see health not only as freedom from illness, but as dignity, discipline, and community. Cleanliness and hygiene shape self-respect and mental well-being, shielding our youth from substance abuse. Your campaign has touched millions of children. In our remote hills, we reach them through schools, churches, and community halls in local languages and traditions. Our universal healthcare scheme, powered by digital tools, brings telemedicine and mobile diagnostics to places hospitals cannot. Climate change challenges our fragile region. We are investing in resilient infrastructure and disaster response, but we need national campaigns to amplify these efforts. Mizoram may be small, but we are rich in ideas. Our strongest asset is our people, whose traditions of mutual aid and discipline we weave into modern healthcare. I salute the leaders, public figures, and celebrities who support this campaign and commend NDTV for making health a national priority. Together, let us build a healthier India that includes every hill, every child, and every voice. Thank you. Jai Hind. Welcome back. You're watching the NDTV Detol Banega Swasth India campaign Season 12 launch. Yes, and we're asking all of you to please be a part of the change. Pledge hashtag I am the change, and I'm going to come to you, Mr. Sai. आप 30 साल से काम कर रहे हैं, आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी भी अगर आप हमें संक्षेप में बताएं, what really are the gaps when we talk about Swachh and Swasth Bharat? Yeah, though we could able to reach all the households with toilet facilities, usage is still a question when we come to the whole family members, whether they are using actually the toilet and maintain it. So hygiene message through Banega Swasth India program like school hygiene education program, we could able to reach the children where the children plays as a role of ambassadors in transforming the hygiene messages. So through hygiene messages and behaviors and practices, through people's movement, we can able to, बच्चे ही ला रहे हैं. through children we can. It's called child to child approach. That is the wonderful approach. We can reach their parents and the community so that everyone in the households will start using the toilets and prevent open defecation. Yes. 100%. So that's the impact, Ayushman, right? They take it back home and then they teach the family. गौतम, आप हार्पिक से जुड़े हैं, हार्पिक कैटेगरी लीडर है. आप 3 P's के बारे में बता रहे थे हमें जब ब्रेक पे जाने से पहले. क्या है वो 3 P's? So 3 P's is the philosophy for Reckitt, right? We start with products which are the brands for us. But उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि how does it impact the planet? Are we doing things responsibly or not? Or planet in our context is the country. आज हम अपने country की बात कर रहे हैं. And the third one is people. How do we really impact their lives? So जब ये 2014 में when India went on a mission on getting open defecation free, Harpic के लिए I think it was very obvious to be part of it. अब उस टाइम पे of course पता नहीं था कि हम क्या क्या करेंगे. But what we knew was we have to be part of it. We have to make a difference there. तो उस टाइम ये शुरू हुआ. But over a period of time, the next step was to start normalizing toilet की बात. Toilet बात करना ही एक taboo होता था एक टाइम पे. So now it doesn't seem like that, but 10-12 साल पहले it used to be like that. जब वो होना शुरू हुआ तो हमने कहा what is the next step? तो clean toilet को एक right बनाना was a very important thing. It's a fundamental right. It should not be a privilege. Again, it sounds very obvious, but it's not that obvious. Which is again a philosophy of the company that making hygiene and health accessible to everybody should be the right, not a privilege for everybody. For 2018, I think the biggest pivotal moment came where we opened the first Harpic World Toilet with the World Toilet Organization, where we said how do we really make an impact beyond. तो sanitation workers के साथ काम करना शुरू किया और उनकी एजुकेशन, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना शुरू किया, उनके हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू की. Because we never talked about them and they were the
core and the fundamentals of the society. It really are the pillars. Absolutely. The difference on ground. Absolutely. तो उनके बारे में ही हम बात नहीं कर रहे थे, तो उनके साथ जुड़े. Now I think over a period of time 1.8 sanitation workers lakh sanitation workers के साथ हम काम कर चुके हैं उनके education. I'm so glad, Mr. Gautam, that you mentioned that, because in some time they're going to be joining us, some of the beneficiaries from the World Toilet College, and we're going to be talking about the new programs. इंदिरा जी, आप तो इस मुहिम से शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं, बदलाव जमीन पर आपने क्या देखा है? I think I've been with this program for day one. So it's 12th year, 1 dozen years, which itself indicates the success of the program. 12 साल हो गया, तो the program is going strong, going from strength to strength, reaching millions of people, children, women, population in general, most importantly vulnerable communities. So I think that is one of the main success stories of this program. Coming to women, I think it has been, if you talk, it is not just sanitation. See, जो किया है sanitation, water, hygiene, most importantly. वे ये जिसको विकसित भारत तक ले जाते हैं. That's exactly the motivation of विकसित भारत, what you've been doing. And in 12 years, they found the escalation of the whole program. The number of people being touched upon by this program. And if you look into these issues, if you look at toilets, if you say it gives dignity to women, it gives health to women, because earlier women couldn't go to toilet any time of the day. So that gives a huge health impact to the women. It reduces anemia in women because worm infestation will go down because of open defecation बंद हो जाते हैं. It gives a lot of other benefits which you don't realize. It actually, if you have women's menstrual hygiene health properly done because of sanitation and water, AIDS का incidence कम हो रहेगा, urinary tract infections कम होगा, reproductive tract infections कम होगा, childbirth will become easier. So a whole of impacts which come to gradually आते हैं. And I think that's the reason the escalation is happening, because women understand that these diseases are coming down. बच्चे को क्या होता है, birth weight increase करेंगे because infections are less. Under 5 mortality will decrease, that's very well. School going improves. Mental health improves. If a child is not sick, he's more stable, happy at home. And a happy child always will make it a happy family. If a child is happy, the parents are happy. Everybody is happy. I think that's one of the main things. एक नई शुरुआत हुई है सुरक्षा पासपोर्ट, जो आप देख सकते हैं. बिल्कुल, ये जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं. I know about what passport is, but सुरक्षा पासपोर्ट क्या मैं जानना चाहता हूँ. आयुष्मान, हमारे पास ये पासपोर्ट है, सफाई मित्र सुरक्षा पासपोर्ट, लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि जमीन पर इस पासपोर्ट ने क्या बदलाव किया है, क्या बदलाव ये पासपोर्ट लेके आया. इसी को समझने के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान मंच पर बुलाना चाहेंगे साहिल तलवार, डायरेक्टर इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स एंड पार्टनरशिप जागरण, और साथ ही आशा सुधाकर सोनवाने, संजीवनी भगवान उचितकर, प्रज्ञा संधू बॉन्सुड़े और योगेश अशोक करात. अब सभी मंच पर आइए. इनफैक्ट ये असली हीरोज हैं आयुष्मान, सिक्ता. These are the real heroes. जैसे गौतम ऋषि जी भी कह रहे थे, they work on ground, but let's ask them कि किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है. साहिल, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कहाँ है पासपोर्ट लॉन्च हो चुका है और इस पासपोर्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, मतलब आपका गवर्नमेंट स्कीम से कैसे जोड़े जा रहे हैं. सो ये जो पासपोर्ट है, इसेंशियली इट इज़ पार्ट ऑफ द हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज. हमारा आइडिया ये था कि हम एक प्रमाण पत्र से एक पहचान पत्र पे शिफ्ट करें. इट एक्ट्स लाइक an essential document which is having key details on the rights, entitlements, key government schemes, which actually links the sanitation workers, not at just the national level but also at the state level. So इस थिंकिंग के साथ हमने ये पासपोर्ट शुरू करा था. एंड आज की डेट में जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, the 1.25 lakh sanitation workers that we had historically trained, all of them are getting a refresher training and they are being provided with the passport. And also in the next term of the program, we aim to provide the passport and its benefits to another 1 lakh sanitation workers. इनफैक्ट क्योंकि साहिल हमें बता रहे हैं कि पासपोर्ट का क्या इम्पैक्ट है, उन्हें किस तरह बेनिफिट होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट वी ब्रिंग आउट दिस पॉइंट दैट अकॉर्डिंग टू स्टडीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एन एवरेज इंडियन इज अबाउट 70 years, बट फॉर एवरेज सैनिटेशन वर्कर इंडिया इट इज 40 years, यानी कि 30 साल का फर्क है. सो थ्रू द पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स ऑफ द सुरक्षा पासपोर्ट वी होप टू गिव really bring about a change and give the sanitation workers the life, healthy life, and of course the dignity which they are going to be getting with this passport. और आप I'm sure पूछना चाहेंगे आयुष्मान, सैनिटेशन ये सब सफाई कर्मचारी हैं. तो पूछना चाहता हूँ कि आप पहले क्या काम करते थे और ट्रेनिंग के बाद कितना फर्क देख रहे हैं आप. पहले मैं
मजदूरी का काम करती थी, छोटा मोटा काम करती थी, 5,000 या 5,500। बट जब मैंने हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में सुना, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। 5 दिन में जो मुझे ट्रेनिंग दी गई, उससे बहुत बदलाव हुआ मुझ में और मेरे फैमिली में। आज मैं इस आइडेंटिटी कार्ड के बदौलत मैं अस्पताल में काम करती हूँ और सुपरवाइज़र के पोस्ट पे काम करती हूँ। और पहले मैं 5-5.5 हज़ार कमा लेती थी, बट अब मैं उससे दुगनी तनख्वाह पाकर बहुत खुश हूँ और ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारा बदलाव मुझ में भी हुआ है। और मैं औरों को भी बताती हूँ कि प्लीज़ आप संस्था से ज्वाइन होइए, ट्रेनिंग लीजिए और बनिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। हमारी संस्था के मार्फत ये आइडेंटिटी कार्ड है, ये हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है। साहिल, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। आशा, संजीवनी, प्रदन्या, योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम बढ़ेंगे आगे और आगे बढ़ेंगे और अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे। हमारे साथ अब एक खास मेहमान आयुष्मान जुड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत शुक्रिया मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ इंडिया का क्या मतलब है और आप उत्तर प्रदेश को इस परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन की कई कहानियां यहाँ मंच पर मौजूद है। स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छता को और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का काम किया था। वर्तमान में मैं अगर कहूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है और जिसके कारण से 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से एक प्रधानमंत्री जी जो आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं, वह 60 करोड़ लोग कोई संपन्न लोग नहीं है, वो गरीब हैं जो कई वर्षों से गंभीर बीमारियों से जूझते रहे और आयुष्मान भारत योजना का अगर लाभ उनको नहीं मिलता तो वह उसी बीमारी के कारण मौत के मुंह में भी जाने की आशंका रहती थी। लेकिन आज इस बात का हम सबको गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ज़रूरतमंदों का दर्द समझते हैं और उसके निवारण का प्रयास करते हैं। We have come a long way since we began 12 years ago, and someone who was with us when we began comes back. So joining us today is Mr. Nitish Kapoor, President Emerging Markets Reckitt. Also, I would like to call upon on stage Mr. Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENAR and Africa, Reckitt. Ravi, welcome back. And I think I want to ask you, Nitish, first of all, thank you so much for joining us today. It's great to have you back with us. Tell us what makes the Dettol Banega Swasth India campaign unique and special compared to other initiatives across the globe. Mick, I'm very happy to be back with NDTV and Banega Swasth India after so many years. And I think that one of the most special things about this campaign is the sheer longevity. I think we're now in the 11th year. I remember the first day that we actually launched it was, I think, the 25th of September 2014. And what makes it really, really special is that, every year it gets bigger and better and more effective. It's always evolving, I think, to meet, needs. So we started, of course, with Swachhta. Now it's Swastha. We're not just in hygiene or health. We're also in nutrition, in education. And in many, many ways, it's a benchmark for any of our, programs that we have elsewhere in the world. It's a great inspiration, not just in terms of, our partnership, not just NDTV and Reckitt, but also the many other partnerships that we have through you with the government, with state governments, with education departments, with NGOs, with a lot of influencers over the years, opinion leaders who really, make an impact when this message is passed through them. But also, I think every day in local communities, right? I mean, I think the effectiveness of a campaign like this is never just in the moment once a year when we do it on television, but every day on the ground in communities. And I'm very proud to see that, it's become what it has over the years.
आपका लक्ष्य हम समझना चाहेंगे विकसित भारत 2047 के लिए क्या है? मेरा मानना है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, जिससे मैंने सुबह ही चर्चा चालू करी थी। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का इम्प्रूव कर पाएंगे जी, थ्रू वेरियस थिंग्स, जैसे कि मेटर्नल इनोवेशंस है, मेटर्नल हेल्थ इनोवेशंस, चाइल्ड हेल्थ इनोवेशंस, टेक इनोवेशंस, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बढ़ता है तो ओवरऑल जो है विकसित भारत की तरफ ये एक बढ़ता हुआ कदम है। उसके साथ में हम हमेशा बात करते आए हैं अलग अलग सीजन्स में, लीविंग नो वन बिहाइंड। तो किस तरह से हम अपने कार्यक्रम के अंदर लास्ट माइल के लोगों को भी साथ में लेके चलें। जी, पुअर्स फॉर पुअर प्रोग्राम भी हों, प्रोग्राम्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज भी हों, इंडिजीनियस कम्युनिटीज भी हों, और उसके साथ में जो डिफिकल्ट टू रीच एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हार्ड टू रीच हैं, उनके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम लोग काम करें और अपने प्रोग्राम को एफिशिएंटली विकसित भारत तो कतार में खड़े आखिरी इंसान तक पहुंचे, ये मकसद है। एंड जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लीव नो वन बिहाइंड, रवि, बट वी आर टॉकिंग अबाउट विकसित भारत एंड द फ्यूचर। नितिश, हम सभी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो प्लेज लें #IamTheChange। आप किस तरह से बदलाव ला सकते हैं फॉर इंडिया टू बी हेल्दियर, हैप्पियर एंड फॉर विकसित भारत 2047? I am the change. And I really believe that I, as an individual, can make a big difference towards making sure that my country is cleaner and healthier every day. The responsibility is as much mine as it is the government or any agencies. So #I am the change. Thank you so much, Nitish, for taking that pledge #IamTheChange, and we request all of you also to pledge #IamTheChange. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अब हमारे साथ हैं। मोहन यादव जी, यहाँ पर डिबेट हो रही थी इंदौर वर्सेस चंडीगढ़ की, लेकिन हमने इंदौर में हो रहे काम को भी देखा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सरकार के लिए स्वच्छता कितना बड़ा मिशन है, कितना बड़ा मकसद है, कितना बड़ा ये मुहिम है? स्वच्छता के लिए तो मध्य प्रदेश से अच्छा कौन सा राज्य है। जब हम 8 पुरस्कार लेकर के आते हैं, हमारा सौभाग्य है कि ये हमारा राज्य स्वच्छता की श्रेणी में सदैव इंदौर तो हमेशा नंबर 1 रहते ही आया है। इस बार इंदौर उस ऑफिशियल क्लब में हो गया, तो हमारा भोपाल क्रमांक 2 पे आया है, जबलपुर 5वें नंबर पे आया है, 10 लाख की आबादी में उज्जैन फर्स्ट आया है। 8 पुरस्कार हमने स्वच्छता में जीते हैं। लेकिन ये भी बात सही कि हेल्थ के मामले में भी हम संक्रामक रोगों को लिए रोकने के लिए बहुत प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था देना और स्वच्छता की आदतों के लिए हमने प्रचार प्रसार से लेकर कई काम किए हैं। और इसे कुल मिलाकर के हेल्थ के मामले में हमारे 1 साल के अंदर 9 मेडिकल कॉलेज हमारे द्वारा खोले गए हैं, और मेडिकल कॉलेजों को भी हमने PPP मॉडल पर हॉस्पिटल से जोड़ करके 1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2 साल के अंदर देश में सबसे तेज़ गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला राज्य अगर कोई रहेगा तो हमारा प्रदेश रहेगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे जाकर के मेडिकल कॉलेज हर जिले स्तर तक चले जाएं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और एक अपनी बात रखने के लिए। आखिर मध्य प्रदेश में और शहर शहर के स्तर पर कितना काम हो रहा है, ये हम अब समझ पाए। मोहन यादव जी, बहुत शुक्रिया हमारे सीजन 12 से जुड़ने के लिए। पीएम महाराष्ट्र का एक और नाम अंबिका हमारे साथ है, कैंपेन से जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। बहुत शुक्रिया शिंदे जी। पहला सवाल तो यही कि आप कैसे हाइजीन को महाराष्ट्र के अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप अब खुद देख रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं NDTV को बधाई देता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपने स्वच्छता जैसे विषय पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हम मानते हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन शैली का एक हिस्सा है। महाराष्ट्र में हर नए शहरी प्रकल्प और गृह निर्माण योजना में हम यह इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी स्वच्छता हो। आधुनिक टाउनशिप, पुनर्वसन प्रकल्प और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत घरों के साथ ही कम्युनिटी टॉयलेट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेस और वर्कशॉप शामिल किए जा रहे हैं। इससे नागरिकों को रहने के लिए साथ साथ सही स्वच्छता ही की आदतें भी सीखने को मिलेगी और उनका आरोग्य भी ठीक रहेगा। वक्त अब एक
धमाकेदार परफॉर्मेंस है। आप जानते हैं आयुष्मान किसका है? सुना है उनके बारे में बहुत, लेकिन मैं पहली बार परफॉर्मेंस देखूंगा लाइव। आई एम वेरी एक्साइटेड। हाय रे हाय मेरे होश उड़ाए तेरी कातिल अदाए हो दिल रुबा। हाय रे हाय मेरी नींद चुराए दिन में तारे दिखाए ओ दिल रुबा। ओ तारे बारे छोड़ दे तू, तारे बारे छोड़ दे तू, तारे बारे छोड़ वाला चन फड़ सोनिया। छोटी मोटी चीज पे तू, छोटी मोटी चीज पे तू, छोटी मोटी चीज पे तू ना मर सोनिया। नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ओ नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। तेनू हवा च उड़ावा लगा के पर सोनिया। ए नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ऐसे चढ़ा है नशा तेरा। हिल गया रे, हिल गया रे, हिल गया सारा ही सिस्टम मेरा। मुझे पता है मेरी जान आई है, ओ मेरे यार तुझे क्या क्या चाहिए। हाँ मैं हूँ सारी की सारी तेरी, ओ मुझे नजरों से आप खाइए। ओ मैं हूँ तेरे हवाले रे पिया 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 पिया। छोड़ दे शराब तेरी, छोड़ दे शराब तेरी, छोड़ दे शराब मेरा हाथ फड़ सोनिया। छड़ तेरा साह जाना, मैंने तेनू खा जाना, मैंने तेनू खा जाना ना डर सोनिया। ये नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ओ नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया। ऐसे चढ़ा है नशा तेरा। हिल गया रे, हिल गया रे, हिल गया सारा ही सिस्टम मेरा। ये नशा जे तू करना ते मेरा कर सोनिया।